Hello friends, today we are going to discuss the concept of the how to determine the properties of the S block and the P block elements, how to evaluate their properties, how to understand their properties, and how to predict their properties of this S block, P block, and also the D and F block elements. Now before we go for the discussion, we need to know कि आखिर ये टॉपिक हमें कौन सी स्टैंडर्ड में काम आएगा. इज इट फॉर क्लास 11, इज इट फॉर क्लास 12, इज इट फॉर एंट्रांस, और इज इट फॉर इज इट फॉर लाइक एज लॉन्ग एज आई एम एसोसिएटेड विथ केमिस्ट्री. आई थिंक द बेस्ट आंसर टू दिस दैट दिस इज अ कॉन्सेप्ट. और जब भी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंस एक टॉपिक हो जाता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कवर द मेनी अदर टॉपिक्स when I am talking about the concept, because today's discussion is purely on the concept that how to evaluate, how to determine the properties of the S block and the P block elements. But I can assure you, after the understanding, after listening this video, you can also able to predict the properties of the D and F block elements as well. तो चलिए पहले मैं ये बता दूं कि आखिर ये कौन सी टॉपिक है जिसको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है. द फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक टेबल व्हाट वी हैव इन क्लास 11 स्टैंडर्ड. देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज ऑल्सो इन क्लास 11 और स्टैंडर्ड 11. देन वी हैव द हाफ ऑफ द पी ब्लॉक. नाउ पी ब्लॉक वी नो देयर इज ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इज द पी ब्लॉक, out of which group 13, 14, 15 are in 11 standard, and group 16, 17, 18 D and A block elements are in the 12th standard. So all this chapter, now if I count this topic, I think around 6 topics that we are going to discuss today, because by understanding this concept, and obviously it is helpful for the entrance as well, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि सर पी ब्लॉक से कैसे एमसीक्यूज या कैसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, और उसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं. आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इश्यूज बाय टुडेज वीडियो. सो in the video you can see that we started with the topic that properties of S block and P block. S block क्या होता है? We know that is the first two group in the periodic table. P block क्या होता है? The last 6 group. I told you group 13 to group 18 in the periodic table. Okay. और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनफैक्ट डी ब्लॉक में भी ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके. और इनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो सर प्रॉपर्टीज आखिर क्या होता है. ये कई जगह पर कभी कोई बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि सर ये प्रॉपर्टीज लोग बोलते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज इन रिलेटेड टू द टॉपिक. सी प्रॉपर्टीज, इफ यू सी दैट प्रॉपर्टीज आर ऑफ two type. One is the physical properties, and obviously the second one is the chemical properties. In the physical properties, जब हम बात करते हैं सर physical properties क्या होता है? Physical properties are the properties that we can directly measure. Look at here, the atomic and the ionic radius, the density, color, melting point or the boiling point, and electrical and thermal conductivity. Along with that, we can also, physical properties also cover the mechanical property, the hardness of the sample, the hardness of the element. All these things comes under the physical properties. Then what is there in the chemical properties? Sir, जब भी हम chemical properties की बात करते हैं, I think the first thing what will come in our mind that chemical properties is obviously related to the reactivity of the element. एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एलिमेंट इज गोइंग टू बी एसिड, एलिमेंट गोइंग टू बी अ बेस, और एलिमेंट विल गोइंग टू बिहेव लाइक ए एम्फोटेरिक. All these things comes under the bracket of chemical properties. Okay, so all these properties is there in the S block and P block element. Sometimes we think like ये सब हमें शायद याद रखना पड़ेगा, ये सब मैं बताता हूँ. No sir, this is a beautiful simple story and very logical.
और वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी बताया दैट प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप. वन इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को आखिर कौन तय करता है. Because every element have their own identity, every element have their own properties, every element have their own different reactivity. फिर इस properties को आखिर कौन control करता है? The properties को control करता है the outermost shell electrons. आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तय करता है ये प्रॉपर्टीज को. लाइक इफ आई ड्रॉ, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कंसीडर दिस इज द आउटरमोस्ट शेल. दिस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कमिंग, देन हु इज कंट्रोलिंग दिस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल करता है? That is going to controlled by the two factors. So हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज किसके? एस एंड पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के. उस प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आउटर मोस्ट. ओके, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है. नाउ वी हैव टू सी ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल कर रहा है. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको कंट्रोल करता है, वन इज द साइज ऑफ द एटम एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन कंट्रोल कर रहा है? साइज ऑफ द एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम. सो इन टूडेज वीडियो मोस्टली बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स, बहुत सारे चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट करेंगे. Now that is the reason हमने क्या किया, आज के वीडियो में we are only going to focus on this size of the atom, how the size of the atom is going to affect, okay, is going to affect the properties of the element. So size of the atom, as I said, in today's video we are going to discuss that how the size of the atom affect the properties. ओके, हमारा मुद्दा प्रॉपर्टीज से है और उसके साथ ये साइज का क्या कनेक्शन है देखते हैं. तो इन ए ग्रुप, सपोज इन ए ग्रुप, ओके, इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, सो व्हाट वी कैन सी, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज. ये हमें सबको पता है. If we go from top to bottom, the size of the atom increases. Why? Because of the addition of the shell. Okay, because of the addition of the cell, you can see that size of the atom increases. You can see clearly from this image. क्योंकि एक सेल जुड़ रहा है, एक ऑर्बिट जुड़ रहा है, उससे साइज बढ़ता है. Okay? Now what happened? इससे क्या होता है? Let's see the effect. Now if we go from top to bottom, so what happened? Size increases. We can understand. If the size increases, then what happened? The distance from the nucleus to the outermost shell electron. The distance, so let me write the distance from nucleus to outermost shell electron increases. Distance बढ़ रहा है, ये that we can see. If the distance will increase, what will happen to the attraction force? The attraction force will decrease.
अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। Now what will happen? अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो गया तो न्यूक्लियस से एक आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। That we can understand. What does it mean by that? I said that we need the minimum amount of energy to remove a electron from the outermost shell of 1 mole of gaseous substance. मतलब मेरा इशारा जो है that I am talking ionization enthalpy का value कम हो जाएगा। So look at the consequences now. In a group we are going top to bottom. Size of the atom increases. You can see that size of the atom increases. If the size of the atom increase, the distance between the nucleus and the outermost shell, okay, the distance जो है बढ़ रहा है, distance from the nucleus and the outermost shell electron increases. So the attraction force, if I go from top to bottom, the attraction force will decrease. If the attraction force will decrease, we need less amount of energy to remove one electron from the outermost shell. It means ionization enthalpy का वैल्यू कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। Then we have to understand few things. ये जो आपने देखा इसके साथ प्रॉपर्टीज का क्या कोरिलेशन है ये हम बोल लेंगे अभी। दैट ये जो असर हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज का क्या असर है देखेंगे। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट द इफेक्ट ऑफ द साइज ऑन द अट्रैक्शन फोर्स ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, उसके साथ प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन है देखिए। यू विल रियलाइज दैट फ्यू सेकेंड बिफोर वी डोंट हैड एनी आइडिया, कुछ देर पहले हमें कुछ आइडिया नहीं था। नाउ एवरीवन विल गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज। लुक एट हियर। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, डिस्कस्ड। सो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस। क्यों हमने डिस्कस किया? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो रहा है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसका बढ़ रहा है। Now what does it mean by the electropositive character? It means easily it can donate a electron. It can easily donate an electron. और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फिर एक बात आता है whether it is going to act as a Lewis acid or Lewis base. I already told in one of my previous video that Lewis acid is a substance which can accept the electron. And Lewis base is a substance which is going to donate the electron. So हमें जब ये पता चल गया कि डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेस है, तो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि लुइस बेस कैरेक्टर विल इंक्रीज। सो इट मीन्स इफ आई गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेरा क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सो इट इज अ वेरी क्लियर कट आइडिया। इन ए ग्रुप द ऊपर जो है दैट इज अ नॉन मेटल विल बी ए लुइस एसिड, एट द बॉटम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हिच इज गोइंग टू बी मेटल गोइंग टू कनेक्ट, दैट इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए लुइस बेस। नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। नाउ इफ इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, okay, because it is have the tendency or ability to donate the electron, metallic character बढ़ेगा। metallic character बढ़ेगा तो obviously इसका density बढ़ेगा। okay, now in some cases the melting point will increase,
boiling point will increase because we know the metals are known for its higher melting and boiling point. There is exception, I'm not going into that. Okay, density will increase. Now अगर मेटेलिक है तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा, एंड ऑब्वियसली उसका मैकेनिकल properties is also going to be high. Now look at the connection. कुछ देर पहले हमने खाली साइज की बात कही थी, that if we go from top to bottom, because of the addition of new shell, what happen? Their size increases and obviously attraction force decreases. इतना ही खाली हमें समझ में आया था, and based on that you are now talking about the properties. Look at here. So if we go from top to bottom, size of the atom will increase, attraction force decrease, electropositive character will decrease, means Lewis base character will increase. Since the electropositive character is increases, so the metallic character increases. अब मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल के सारे जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिलना चाहिए और वो हमें मिलता भी है. लुक एट हियर, उसका डेंसिटी हाई होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगा, एंड ऑब्वियसली उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस आर द इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज only because of the size. बट यहां पर हम खत्म नहीं करेंगे डिस्कशन को, और थोड़ा सा क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा सा ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम साइज फैक्टर के साथ डायरेक्टली कोरिलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक द रिएक्टिविटी. अभी हमने प्रॉपर्टीज की बात किया. नाउ अभी हम देखेंगे ये जो साइज फैक्टर था, जो बहुत एक मामूली सी चीज थी थोड़ी देर पहले हमारे लिए, कि हम सब जानते थे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ता है. परफेक्ट. उसके साथ प्रॉपर्टीज का क्या कोरिलेशन है हमने बताया. नाउ लुक एट द वर्ड रिएक्टिविटी. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी. नॉट ओनली द रिएक्टिविटी, कौन एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो भी हम बताएंगे. रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, वो भी हम बताएंगे. आप बताएंगे अभी. लुक एट हियर, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट. अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन है? वी नो इट्स अ वेरी फेमस ऑक्सीजन फैमिली. ग्रुप 16 को हम लोग कैल्कोजेन फैमिली भी बोलते हैं. वी आर ऑल्सो टॉक अबाउट द कैल्कोजेन और ओर फॉर्मिंग ग्रुप. ये लोग ओर बनाते हैं, ज्यादातर ओर ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बनाते हैं, लाइक ऑक्साइड्स एंड द सल्फाइड्स. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसके बारे में फिलहाल हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव. ओके, नाउ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. हमें इसको एटॉमिक नंबर नहीं पता. मैंने बताया कि भाई सबके साथ जो है आप मेटल का रिएक्शन कराते हैं, सबके साथ मेटल को आप रिएक्शन कराना चाहते हैं. नाउ मेटल वी आर राइटिंग एज एम. मेटल के साथ सबका रिएक्शन हम कराना चाहते हैं. नाउ वी हैव टू सी मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहेगा. मेटल्स क्या है सर? मेटल्स आर नोन फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर नीचे आते आते इट इज बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अभी आप खुद देख सकते हैं मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेलुरियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक दूसरे को ऑब्वियसली पसंद नहीं करेंगे, तो यहां पर रिएक्शन होने का चांसेस नहीं है. जबकि मेटल ऑक्सीजन के साथ खुशी खुशी रिएक्शन करेगा. ओके, देन दे विल फॉर्म the metal oxide. They will form the metal oxide.
Because metals are electropositive and oxygen is electronegative. Why? Because of the small size of the oxygen. Oxygen का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. टेलुरियम का साइज बड़ा है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे डोंट लाइक ईच अदर, रिएक्शन नहीं होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिएक्शन होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा. नाउ आई टोल्ड यू वी आर नॉट ओनली वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट कि भाई ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो भी बताएंगे आपको. देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है. अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, सो दिस इज लाइकली टू बी सॉलिड. This one is also going to maybe solid or liquid, and then we are going to have liquid and gas. So look at here, look at the transition, look at the transition. यहाँ पर गैस होगा, अगर रिएक्शन हुआ तो गैस ही बनेगा. क्यों? बिकॉज द इंटरैक्शन, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज वेरी लेस. तो अगर रिएक्शन किया तो गैस बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, आपने बहुत सारे मेटल ऑक्साइड देखा है, आपने आयरन ऑक्साइड देखा है, आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखा है, आपने जिंक ऑक्साइड देखा है. जितने भी मेटल ऑक्साइड हम लोग देखे हैं इन द रूम टेम्परेचर, दे आर ऑल आर सॉलिड. व्हाई? दिस इज द रीजन. सो आप देख सकते हैं, बिकॉज बाय नोइंग देयर साइज, बाय नोइंग देयर कैरेक्टर, यू कैन प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज, देयर रिएक्टिविटी. नाउ फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू tell you, now these are the electropositive. Now on the other hand, if I say no, ऑक्सीजन के साथ मुझे फ्लोरीन का रिएक्शन कीजिए, I want to react with the fluorine. Now we all know that fluorines are known for their electronegative character. Okay, fluorine is highly electronegative. Now you tell me which one is going to react fast. Obviously the tellurium, because tellurium is electropositive, this is electronegative, they love each other and they will form a solid compound. और यही compound जब ऊपर की तरफ जाएगा, maybe OF2, it is obviously a gaseous product. So look at the trend, because the attraction force is high, the tellurium fluoride will solid, then liquid, obviously the gas. So look at here. Now हमें ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है ये समझने के लिए कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा. रिएक्शन अगर करेगा भी तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा. ओके, सो नाउ वी गो फॉर द अनदर डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो. ओके, नाउ टू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द एनामोलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. एनामोलस बिहेवियर क्या होता है? एनामोलस बिहेवियर हमने जो सोचा उससे अलग, उस ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज है उससे अलग. ये हमने कई बार देखा है. किसके लिए देखा है? मोस्टली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17. 18 की बात नहीं करेंगे बिकॉज इन 18 ऑल आर नोबल गैसेस ओनली. सो ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन एंड ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन. वी ऑल नो दिस. Okay, group 13, that is the reason group 13 is also known as boron family, carbon family, nitrogen, oxygen and halogens. We all know this. Now इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसके नाम से पूरा ग्रुप जाना जाता है, इनका खुद का बिहेवियर बाकी ग्रुप मेंबर से अलग होता है. जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बाकी लोग नहीं करता. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बाकी कोई नहीं करता. फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट, not only in group 17, in the entire periodic table, the only element which shows only one oxidation state and that is -1. ऐसे कई सारे हैं, ऐसे कई सारे एनामोलस बिहेवियर है जो हमें फर्स्ट एलिमेंट में देखने के लिए मिलता है. और ये क्यों होता है? इसका बेसिक रीजन है उनका साइज. उनका साइज
Okay, so let me summarize why they are going to show this anomalous behavior. Because of the first one is the small size in the group. उस ग्रुप का सबसे छोटा साइज इन्हीं लोगों का होता है. आज का ये वीडियो साइज के ऊपर, साइज के इफेक्ट के ऊपर है, इसलिए हम ये सारी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं. दैट द फर्स्ट एलिमेंट having the smallest size in the group, so that is there. Now if the size is small, obviously the ionization enthalpy, or if I am going to write ionization enthalpy is very high. Number 3, the electronegativity is also going to be very high. That is the reason these elements like fluorine, oxygen, nitrogen, they are doing for the hydrogen bonding. So look at there, these 3 property जो मैंने बताया, तीनों के तीनों जो रीजन है, दे ऑल कनेक्टेड टू द स्मॉल साइज. साइज छोटा तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई. एंड द फोर्थ वन इज लिटिल बिट डिफरेंट, जो मैं ज्यादातर डिस्कशन में मेरे अगले वीडियो में करूंगा, एंड दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट आई नीड टू राइट इट हियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज द एब्सेंस of d orbital. एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल होते ही नहीं, उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है. देन क्वेश्चन इज कमिंग, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओके, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलिए लेट मी टेक 1 or 2 एग्जांपल. लाइक कार्बन इज 6. नाउ 6 मीन्स वी हैव 1s2, 2s2 and 2p2. हमने जो पुराना एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने I have only discussed about the electronic configuration and there, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जानबूझ के दिया है, कि आप देखेंगे कि वहां पर मैंने बताया कि जब 1 आता है we are only getting the s, when coming 2 we are getting 2s and 2p. जब 3 आता है 3, then only we are getting the d orbital. Now since we have only 2 this, the principal quantum number is 2, we cannot get the d orbital, so we only get s and p. Similarly, for if I write oxygen is 8, so 1s2, 2s2, 2p4, and for fluorine it is 9. Okay, so here also it is like 1s2, 2s2, 2p5. सो देख सकते हैं किसी में भी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसी में भी आपको d ऑर्बिटल नहीं मिलेगा. और यही 4 कारण है जिसके वजह से ये एलिमेंट्स बाकी लोगों से अलग बिहेवियर शो करते हैं, और उसी का नाम है एनोमलस बिहेवियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्विक 1 or 2 एग्जांपल and we'll complete this video. So at the last we are going to discuss a small question, which is this kind of question coming frequently in the board exam, also in the entrance exam. Concept base है, कितना आसानी से हम समझ सकते हैं. देखिए, very simple question, that why PCl5 is possible but PI5 is not possible. PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पॉसिबल है, हमें मिलता है, लेकिन PI5 हमें नहीं मिलता. Why? This question we can easily answer with the help, with the understanding of the size factor. Because look at here, in the group 17, if you see, we have fluorine, we have chlorine, we have bromine, we have iodine. Now fluorine have a small size, chlorine bigger, bromine even bigger, iodine is the biggest among the all. Now phosphorus can easily accommodate 5 small chlorine because they are small in size. Chlorine का size छोटा है, it can easily accommodate around the phosphorus. But that is not possible in case of PI5 because the iodine have a very big size. So this is not at all possible.
this is not possible, this is quite possible. So you can see by understanding the size factor, how many things we can predict, how many things we can answer easily. So not only that, जब मैं ग्रुप 17 की बात किया तब मैंने ये सोच रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि why the IF कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, आयोडीन एंड फ्लोरीन के कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, देन द क्लोरीन एंड फ्लोरीन, सबसे ज्यादा स्टेबल, दिस कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल। आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर द मोस्ट स्टेबल कंपैरिजन टू अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। Why? Because you can see iodine is bigger in size, they are highly electropositive. Fluorine, the smallest in size, the highly electronegative. So the difference between the fluorine and iodine is the maximum. The difference of electronegativity, the difference of electronegative character is higher between the fluorine and iodine. So the iodine and fluorine, when they combine, they will form the most stable compound because of the higher inter-electronic force of attraction. Okay, all these things, as I said, there are many more things that you can answer with the help of this concept. आज के इस वीडियो में हमने खाली साइज फैक्टर की बात किया, लेकिन इससे भी और अहम हिस्सा एक है जो मैं हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द प्रॉपर्टीज of the S block and P block elements. Hope you like this video. Thank you very much. Namaskar.